Good morning, children. I'm Almaz Beg from Bhopal, and I'm before you with your class 12th lesson 2, A Friend Who Came from the Sky. आज हम कक्षा 12 के लेसन 2 A Friend Who Came from the Sky का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं. In my last class, I went through 4 to 5 short paragraphs. पिछली क्लास में हमने 4 से 5 पैराग्राफ्स का अध्ययन किया था. Let's have a look on your screen. देखिए लेसन 2 यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जिसको हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं. We have gone through these 3 paragraphs and we have also gone through these short 3 paragraphs. Now we will start from here. आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. I am reading first this for you and then I am going to explain it also. Listen carefully, ध्यानपूर्वक सुनिए और सुनने के बाद आप स्वयं इसको रीड करने का प्रयास कीजिए. Minnie was 12 years old and spastic. How was Minnie? How old was Minnie? Minnie कितने वर्ष की थी? Minnie was 12 years old. Minnie 12 वर्ष की थी. And a spastic और एक spastic थी. A spastic is a person who has no control over his hands and legs from birth. अगले वाक्य में यहाँ स्पेसिटिक शब्द का अर्थ बताया गया है कि स्पेसिटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है who has no control over his hands and legs from birth. बर्थ यानी जन्म से ही जिस व्यक्ति को अपने हैंड्स और लेग्स पर कंट्रोल यानी नियंत्रण नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को स्पेसिटिक कहते हैं. और जो कि मिनी थी. How old was she? She was 12 years old. What problem did she have? उसको क्या समस्या थी? She was a spastic. अगले लाइन देखते हैं. Minnie could not walk or button up her shirt, but she could crawl and had learned to use her hand to brush her teeth and use a spoon to eat. She could also maneuver her wheelchair. She went to a special school where she was taught exercises and underwent speech therapy as well as learned the usual objects like other children. Here, आगे देखते हैं. Minnie could not walk. Minnie चल नहीं सकती थी और button up her shirt ना ही अपने शर्ट के बटन्स को लगा सकती थी. But she could crawl. लेकिन वो क्रॉल कर सकती थी. क्रॉल का मतलब होता है घिसटना. And had learned to use her hand और वो ये सीख चुकी थी कि किस प्रकार ब्रश करना है. अपने दांत टीथ यानी दांतों को किस प्रकार ब्रश करना है ये उसको सिखाया गया था. And use a spoon to eat और किस प्रकार स्पून यानी चम्मच को पकड़कर खाना खाना है. She could also maneuver her wheelchair. अपनी व्हीलचेयर को भी वो आगे खिसकाने में समर्थ थी. She went to a special school. वो एक स्पेशल विशेष प्रकार के स्कूल जाती थी. Where she was taught exercises. जहां पर उसको एक्सरसाइजेस कराई जाती थी. और underwent speech therapy. स्पीच कहते हैं बोलने को. थेरेपी बोलने का जो प्रयास उसको है कराया जाता था. As well as learned the usual objects like other children. और दूसरी चीजें भी उसे सिखाई जाती थी जो कि दूसरे सामान्य बच्चों को सिखाई जाती थी. But Minnie had no friends. Does she have any friend? No, she does not have any friends. क्या मिनी के दोस्त थे? No. Minnie had no friends. Even since they had come to this house 6 months ago, Minnie had no one to play with. Even since they had come to this house 6 months ago, 6 महीने पहले ही वो लोग यहाँ आए थे जिस घर में वो रह रहे हैं. Minnie had no one to play with. यहाँ मिनी के साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था. All the neighborhood children seemed to be busy with their own games and schools. Neighborhood children यानी पड़ोस के बच्चे. All मतलब सभी पड़ोस के बच्चे seemed to be busy with their own games. वे सब अपने अपने खेलों में बहुत ही बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे और अपने स्कूल के कामों में लगे रहते थे. And they had never become friendly with Minnie. वे कभी भी मिनी के साथ फ्रेंडली नहीं हुए, मित्र नहीं बने. It was Minnie's favorite pastime to watch the children at their play.
मिनी अपना समय कैसे बिताती थी? मिनी अपना समय इन बच्चों को खेलते हुए देखकर बिताती थी। पास टाइम यानी समय को बिताना। फेवरेट, सबसे अच्छा उसे क्या लगता था? When she is sitting in the balcony and watching the children playing in the park outside. बच्चों को पार्क में खेलता देखकर ही वो संतुष्ट हो जाती थी, खुश हो जाती थी। Now next paragraphs. Big drops of rain started to fall, but the children went on with their games. बड़ी बड़ी बूंदे जो हैं वो गिरने लगी। ड्रॉप्स यानी बूंदे, फॉल यानी गिरना। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम्स, लेकिन जो बच्चे थे वो अपने गेम्स यानी खेल में लगे रहे। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप, एक लाल रंग की बड़ी बॉल जो है वो उचक कर आई and down, और नीचे गिर गई। Suddenly there was another ball among the children. तभी अचानक एक दूसरी बॉल बच्चों में आकर गिर गई। A brown one, जो कि ब्राउन कलर की थी, भूरे रंग की थी। The girls started screaming, और जो लड़कियां नीचे खेल रही थी वो स्क्रीम करने लगी, चीखने लगी। And the boys shouted at the top of their voices, और जो बॉयज थे वो भी उसको देखकर, उस बॉल को, भूरे रंग की बॉल को देखकर शाउट यानी चिल्लाने लगे। At the top of their voices, जितना कि वो ऊंची आवाज में चिल्ला सकते थे। A boy bent down to touch the ball. एक बालक उसमें से झुककर, bent down यानी झुका, to touch the ball, जो बॉल आके गिरी थी उस बॉल को छूने में। When it suddenly flapped, और जब देखा कि वो बॉल जो है वो फड़फड़ा रही है, its wings and flew up, और थोड़ी सी उड़ी। Before Minnie knew that was happening, the new ball had flown into her balcony and landed on her lap. इससे पहले कि मिनी कुछ जान पाती, न्यू मतलब जानती, what was happening कि नीचे प्लेग्राउंड में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तभी क्या होता है? The new ball had flown into her balcony. एक नई बॉल आके मिनी की बालकनी में, कहा? उसकी लैप में, LAP, लैप यानी उसकी गोद में आकर गिरती है, लैंड होती है। LAND, लैंड कहते हैं किसी चीज के धरती पर उतरने को, क्योंकि वो आसमान से उतर कर आई है और बालकनी में मिनी की गोद में आकर गिरी है, इसीलिए यहाँ पर लैंड शब्द का प्रयोग किया गया है। It took a moment before Minnie recovered from her shock. एक क्षण लगा मिनी को, मिनी शॉक हो गई, मिनी चौंक गई, और उससे बाहर निकलने में उसको एक मोमेंट लगा। She saw that the thing in her lap was not a ball at all, but a bird. She saw, उसने क्या देखा? That the thing which came in her lap, जो चीज उसकी गोद में आकर गिरी है वो बॉल नहीं है, वो एक बर्ड है, एक पक्षी है। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, जो कि उसकी गोद में बैठी हुई है, ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट। फ्राइट यानी डर में। पक्षी है किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की गोद में आके गिरा है तो वो डरा हुआ है। हडल्ड यानी सुखड़ा हुआ। The rain started falling in earnest now. अब क्लाउडी वेदर है, थंडर स्टॉर्म्स हैं, तूफान आया हुआ है, पत्ते गिर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इस मौसम में थोड़ी ही देर में द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, बारिश जो है वो गिरना प्रारंभ हो जाती है। नाउ आज के इस क्लास में हम इन 4 ही पैराग्राफ्स का अध्ययन करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द क्वेश्चन आंसर विच आर बेस्ड ऑन दीज 4 पैराग्राफ्स। अब हम इन 4 पैराग्राफ्स पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। Here is before you, पहला प्रश्न हम कर चुके हैं, फिर भी मैं आपके सामने रिपीट करूंगी। What was Minnie doing in the balcony? मिनी बालकनी में क्या कर रही थी? Minnie was sitting on her wheelchair. मिनी अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। And watching the children playing in the park outside. और बाहर बच्चों को देख रही थी जो कि पार्क में खेल रहे थे। Now the next question, what disability did she have? मिनी को किस प्रकार की डिसेबिलिटी थी, किस प्रकार की अपाहिजता थी? Your answer is Minnie was a spastic. मिनी एक स्पेसिटिक थी, who had no control over her hands and legs from birth. स्पेसिटिक वह व्यक्ति होता है जिसे जन्म से अपने हाथ और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। She could not walk, वह चल भी नहीं सकती थी। Now next question, why did
द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर? नेबरहुड चिल्ड्रन, पड़ोस के बच्चे उसके साथ फ्रेंडली क्यों नहीं हुए, क्यों उनसे दोस्ती नहीं की? आंसर इज the neighborhood children did not become friendly with her because they were busy with their own games and schools. पड़ोस के बच्चे अपने स्कूल और अपने खेलों में बहुत ही बिजी थे, बिजी यानी व्यस्त थे. That is why they did not become friendly, इसीलिए वे मिनी के साथ दोस्ती नहीं बना पाए. Next question. Being specific, what could Minnie do and what could she not? एक स्पेसिफिक पर्सन होने के बावजूद मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं, इसके बारे में बताइए. हमने अपने आज के स्टैंजाज में से पढ़ा है. योर आंसर इज बीइंग स्पेसिफिक, मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट्स. मिनी चल नहीं सकती थी और अपने शर्ट के बटन नहीं लगा सकती थी. बट शी कुड ब्रश हर टीथ, लेकिन वो अपने दांतों को ब्रश कर सकती थी. एंड यूज अ स्पून टू ईट, और एक चम्मच का प्रयोग खाने के लिए कर सकती थी. एंड शी कुड क्रॉल, और वो घिसट घिसट कर आगे भी बढ़ सकती थी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम. ये प्रश्न आपसे फाइनल परीक्षा तक पूछा जाता है. आज के इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, बिकॉज टिल हियर वी हैव गॉन थ्रू द समरी ऑफ द लेसन, द मीनिंग ऑफ द लेसन. आज जिन 4 पैराग्राफ्स का हमने अध्ययन किया है, उन 4 पैराग्राफ्स पर आधारित ये 3 प्रश्न थे जो मैंने आपको दिए. इनको आपको बार बार वीडियो को पॉज करके सुनना है, रिपीट करना है, एंड देन यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. फिर आपको इन्हें नोटबुक में उतारना है. नोटबुक में उतारने के बाद इनको लर्न करना है, जब तक कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको नहीं देते. आज के इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय.